Madam, what is the mind game and esports, the way it has been developing? And we know that esports is number 4 popular sports in the world. What you have to say, and you have been here, and your fan following, along with the game itself that Mr. Jha and his team has organized here. What has been your observation? I think bringing esports like SOGF has done a wonderful job in bringing everything under one roof. Like today we have chess, blind chess, and drumming part of the events, and I'm sure in the future they're going to add few more intellectual games as well. And this platform will be giving a great opportunity to the talented players from all over the country and also from the Asian parts to take part in these competitions. And they are encouraging them by giving a Dhyanchand award as well, the scholarship money, so that they can improve further in their careers. And as a chess player, I feel very happy that players are being encouraged and given the opportunity to showcase their talent. So I'm sure in the future they'll be also having opportunity to get international medals in the future as well. One more question, ma'am. How do you analyze the minds that are playing these games, and also the esports, the technology that is being used? India is a hub for technology, and India, we know, is a mind game, what you call mind of the world. How do you analyze both the things, and what do you see the future of esports and SOG, the program that SOG has conducted? Esports is like very popular. Even the like online gaming has become very popular, especially during the pandemic time. That's when people started watching chess in online platforms, and that's the only sport which is active during that period. I think that brought all the attention to the online platform, and giving that platform a recognition, and also taking it forward further to give an opportunity to the players is a wonderful thought by Nandanji and his team. So definitely it's going to have a very bright future. मिस्टर झा, आज आपने अपने उद्बोधन में भी कहा कि जो आज यहाँ गणमान्य व्यक्ति आए हैं वो बता रहा है कि ये गेम जो आप एसओजी ऑर्गेनाइज कर रही है इंटरनेशनल माइंड गेम एसोसिएशन के साथ, ये गेम उसको परिलक्षित कर रहा है कि इसकी पॉपुलैरिटी क्या है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले मैडम से भी पूछा कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड में चौथा सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। संस्था के अध्यक्ष के रूप में। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारे पास हैं, इस सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री जी हैं, वो आए कार्यक्रम में, पूरी कार्यक्रम की शोभा बनाई। अब जो हम बैठे हुए हैं, तो हमारे पीछे में प्रधानमंत्री जी हैं, आप देख सकते हैं। उनके दिल में जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनका चेस के प्रति उनका लगाव, इस देश में पहली बार चेस ओलंपियाड होस्ट किया। उसमें अनुराग ठाकुर जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम को इनॉग्रेट किया। ठीक उसी तरह ये जो कार्यक्रम माइंड स्पोर्ट्स का है, जिस तरह से सरकार का सहयोग मिला, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, आप देख सकते हैं। जिस रेड कार्पेट पे आप खड़े हैं, 200 देशों के झंडे लगे हैं। इम्जा डायरेक्ट इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, और बहुत जल्दी सरकार के साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के उस विज़न को लेकर हम इसी धरती से, हरियाणा की धरती से, हम फिर से दुनिया की गोद लेके यहाँ पे आए। और ई स्पोर्ट्स जो है, वो ई स्पोर्ट्स एंड माइंड स्पोर्ट्स जो अलग अलग चीज़ें हैं, हम दोनों को साथ में मिलाते हैं। वो है इम्जा को देख के मंत्री जी अमजा बन गया। जो ओसीए है, ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया, उन्होंने इमीडिएटली एक महीना पहले अमजा बनाया, एशियन माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इम्जा से ही प्रेरित होकर ओलंपिक कमेटी ने अमजा बनाया है। पहला टूर्नामेंट इस धरती पे होगा, आपके आशीर्वाद से होगा, और फिर से हरियाणा उसका विटनेस बनेगा। जैसे मंत्री जी ने कहा था कि ओलंपिक खेल हो और हरियाणा उसका हमेशा बल होता है। कोई कंपटीशन किसी राज्य से नहीं होता। अब माइंड स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट होने जा रहा है, ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट होने जा रहा है, ओलंपिक होने जा रहा है। आप सब मीडिया को ध्यान में होगा कि रियाद में अगला 6 बार का ई स्पोर्ट्स का ओलंपिक होस्ट होगा, ऐसा ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी ने अनाउंस किया है।
मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सहयोग से, सरकार के सहयोग से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारा देश हमारे फेडरेशन के माध्यम से उसमें अव्वल आएगा। झा सर, हमने मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट खडसे मैडम से पूछा था कि क्या ई स्पोर्ट्स में हिंदुस्तान कैसे अपने पॉलिसीज़ बनाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम आमंत्रित कर रहे हैं सजेशंस को। कब तक ये सजेशंस आएंगे और अमली जामा कब तक पहनाएगा, ये आप टाइमलाइन बताएं। बहुत जल्दी सरकार के साथ बहुत अच्छी बात है, हम आ चुके हैं और बहुत जल्दी खुशखबरी देंगे आपसे। और ये क्या आपका ये ई स्पोर्ट्स और माइंड गेम्स के जो एथलीट्स हैं, कितने एथलीट्स रियाद में जाएंगे और क्या आपकी कोई क्या रूपरेखा होगी? ये अभी ओलंपिक कमेटी ने कंप्लीट फ्रेमवर्क नहीं बनाया है, जैसे वो फ्रेमवर्क बनाएगा इंडियन ओलंपिक कमेटी को बता देगा। ऑलरेडी इंडियन ओलंपिक कमेटी ने हमको भेजा था अभी इंजा के लिए, हम उनके एडवाइज़र बन गए। आज तो